Hello, everyone, and welcome. Today, we are going to talk about mastering the art of thesis writing. This presentation will guide you through the essential steps, techniques, and examples to help you write a thesis from scratch, from picking a topic all the way to finalizing your manuscript. So, writing a thesis can seem intimidating, but by breaking down the process into manageable parts, it becomes much more approachable. By the end of this session, I hope you will feel more confident about starting your own thesis, knowing the structure to follow, how to gather and analyze data, and tips to make the writing process smoother. So let's dive in and start at the very beginning, choosing a thesis topic. So, key steps for choosing a thesis topic are that you brainstorm the areas of interest. This has been discussed multiple times in the discussion on experimental design and during the lecture on making a synopsis. So, brainstorming the area of your interest is very important. Why is that so? Because we have discussed you are going to work on this for 6 months to up to 2 to 3 years. So, this is very important for you to have interest in that area where you are performing your research in, and then conduct preliminary research to identify gaps. इसके हवाले से भी हमने डिस्कशन की है कि आपने रिसर्च गैप को क्या करना है, लाजमी आइडेंटिफाई करना है. If you are unable to find a research gap, then your research is simply considered to be unethical. It is considered to be copied from someone else's research. So, finding a research gap is very necessary in order to make your research genuine and authentic. Then, consultation with the advisors or mentors is also very necessary. Why is that necessary? Because your advisors and mentors are also going to support you on your sorry on your journey through the research. So, if they do not have expertise in that specific area, then it is also useless because they won't be allowing you to perform the research. Or if they do so, they allow you to perform the research, you will be stuck somewhere in between. तो उसके बाद क्या होगा, फिर आपके लिए मसले बनेंगे. तो आपकी कंसल्टेशन आपके एडवाइजर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है. एंड आफ्टर दैट नैरो द फोकस बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी, रिसोर्सेज एंड स्कोप. इसके लिए हमने क्या कहा था कि जी आप स्मार्ट टेक्निक या फाइनर टेक्निक जो है उसको यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो स्टडी हो, आपका जो क्वेश्चन हो जिस पे आपने रिसर्च करनी है, वो फिजिबल हो, वो मैनेजेबल हो, वो अचीवेबल हो, वो टाइम बाउंड हो, रियल हो, इमेजिनेशंस पर मबनी ना हो, वगैरह वगैरह. तो टॉपिक आपने वही चूज़ करना है जो आपको क्या करता है, एक्साइट करता है. एंड इन एडिशन आपने ये भी जहन में रखना है कि आप जिस पे रिसर्च करने जा रहे हैं वो आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है उससे भी कोइंसाइड करे, उससे भी रिलेवेंस में हो. सॉरी अगेन. नाउ स्टार्टिंग द राइटिंग प्रोसेस. तो राइटिंग प्रोसेस आपने किस तरह शुरू करना है, सबसे पहले आपने आउटलाइन बनानी है. ड्राफ्टिंग एंड आउटलाइन इज़ वेरी नेसेसरी. एंड वन थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इज़ दैट कि ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करें, इंट्रोडक्शन से ही शुरू करें, जो कि बिल्कुल फर्स्ट आपका जो है ना पार्ट है. आप कहीं से भी शुरू करें, जो पार्ट आपको लगता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इनमें से, आप उस पार्ट को क्या करें, पहले लिखना शुरू करें. बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट.
ठीक है, लिखना ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजाय इसके कि आप कुछ भी ना लिखें और सिर्फ परफेक्ट मोमेंट का और परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करें कि परफेक्ट टाइम आए कोई और आप उसमें अपना जो राइटिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें। Now, it's not only the introduction, literature review, methodology, results, discussion, conclusion. These are just the main headings. इनके अंदर आपकी बहुत सी मज़ीद headings बनती हैं. So, the main difference in a writing process of a synopsis and a thesis is that thesis is very detailed. thesis क्या होता है? बहुत ही डिटेल्ड होता है। तो इसमें आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको क्या करना होता है, रीड करना होता है, साइट करना होता है। मेथडोलॉजी अगर आप कोई फॉर एग्जांपल गैमा रेडिएशंस यूज़ कर रहे हैं, आप कोई हिस्टोलॉजी की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, आप कोई एलाइज़ा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कोई केस स्टडी कर रहे हैं, आप कोई इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं, आप सर्वेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपने ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल बतानी है। यू हैव टू गो थ्रू एवरी डिटेल। हाउ did you collect the samples? How did you choose the individuals? How did you made the make the questionnaires? Each and everything. जो जो एक एक छोटी से छोटी डिटेल होगी कि आपने किस तरीके से वो अचीव की है, आपने वो इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें बहुत से आपके जो सब पॉइंट्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो सब पॉइंट्स भी क्या है, इसमें आ जाएंगे आपके। फिर रिसर्च क्वेश्चन, तो रिसर्च क्वेश्चन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल। हेयर वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल अगेन। तो लेकिन रिसर्च क्वेश्चन आपका होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये आपके लिए क्या है, आपका रोड मैप है। ये आपको सारा टाइम याद दहानी कराता रहेगा कि आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है और किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना। तो अगेन स्मार्ट टेक्निक के जी, स्मार्ट स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। अदर देन दैट आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, जो कि आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि जी क्यों आपकी जो रिसर्च है उसे साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर कोई जगह दी जाए, उसे कोई इम्पोर्टेंस दी जाए। तो ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी फ्यू, तो चंद एक तो लाजमी होने चाहिए, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये आपको एक अच्छा थीसिस नहीं दे सकता। सो यू मस्ट हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव। Now, as far as the thesis structure is concerned, the first and the foremost part of your thesis is the introduction. The second part is the literature review, and then methodology, and then results, and then discussion and conclusion and references. So this is the backbone of your thesis. Each section has a specific purpose, and together they cover what you did, why you did it, what you found, and what it means. Think of it like this: if your thesis were a story, the introduction is the beginning, setting up the scenario and the big question. The literature review, it is the backbone. In terms of backbone, in terms of the background context. So, what is the story so far in this field? Matlab, what are actually other scientists doing? And then comes the methodology. So the methodology and the results are the middle, what you did and what you discovered. And then the discussion. Discussion is where we understand the results. So we are trying the plot together, and the conclusion is the end, how the story wraps up and why it mattered. And throughout, you have to add references to show the supporting cast of other research that informed yours. So these all are the important parts of your thesis.
The first part is introduction. So the introduction is where you set the stage for your entire thesis. In this section, you want to grab the reader's attention and give them a clear understanding of what your research is about and why it matters. So remember, the introduction is all about contextualizing your work. By the end of the introduction, a reader should understand exactly what you are researching, why it is important, and how you plan to tackle it. It's like giving the reader a promise of what's to come. ठीक है जी? तो आपने इंट्रोडक्शन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है। और बहुत से लोग जो इंट्रोडक्शन में गलती करते हैं वो ये होती है कि वो स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। डायरेक्ट आपने कहाँ पे नहीं जाना, स्पेसिफिक की तरफ नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जनरल। आपने जनरल से शुरू करना है और उसके बाद आपने किधर जाना है, उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या होना है, स्पेसिफिक की तरफ आना है। अपने रिसर्च के साथ चीज़ों को क्या करना है, लिंक करना है। डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिख रहे हैं कि जी किस तरह से सोलर पैनल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी, तो आपने सोलर पैनल से शुरुआत नहीं करनी, आपने रिन्यूएबल एनर्जी से शुरुआत नहीं करनी, बल्कि आपने शुरुआत करनी है क्लाइमेट चेंज से। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आपको कितना ज़्यादा जनरल से क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एज़ वी हैव डिस्कस्ड कि इसमें आपने क्या करना है, कन्विंस करना है आपके रीडर को कि जी आपकी जो रिसर्च है वो अहमियत रखती है। ठीक है? जो आप जिस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं वो अहमियत के लायक है, उस पर वो इतनी वैल्यू रखता है कि उस पर ये जो इतना टाइम सर्व किया जाए और इतना काम किया जाए। आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। तो याद रहे कि इंट्रोडक्शन, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि इंट्रोडक्शन जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर थीसिस। ये जो चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन का, ये आपके थीसिस का सबसे बड़ा चैप्टर होता है और ये आपको बहुत ही डिटेल में लिखना पड़ता है। आप जनरल से आ रहे होते हैं स्पेसिफिक की तरफ, बट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक आप जब जाते हैं तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी होती है कि आपकी जो ये राइटिंग है, ये जो लिखाई है, इसमें कनेक्शन हो, ये सेंस बनाए। ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ किसी और चीज़ के बारे में है तो दूसरा पैराग्राफ किसी और चीज़ के बारे में है। हर चीज़, हर आइडिया पिछले आइडिया से क्या हो, आइडिया से कनेक्टेड हो। तो कनेक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। चूँकि ये एज़ आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ये एक लंबा पार्ट है एक थीसिस का, तो इसलिए मोस्ट ऑफ दी जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि लंबा होने की वजह से दे मिस दी कनेक्शन, वो कनेक्टिविटी को मिस कर जाते हैं, बीच में कहीं-कहीं डिट्रैक्ट हो जाते हैं। सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद द प्रीवियस आइडियाज़। और आपने समरी लाजमी ऐड करनी है। जो मेथडोलॉजी है, बहुत से लोग इसको रिसर्च करते हैं बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ ऑप्शनल। मेथडोलॉजी आप डिटेल्ड मेथडोलॉजी तो मेथडोलॉजी के सेक्शन में ही ऐड करेंगे, लेकिन जस्ट अ क्विक पीक जो है वो भी बाज़ औक़ात इंट्रोडक्शन के अंदर ही दे दी जाती है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ एन ऑप्शनल थिंग टू डू। आप अगर चाहें तो यू कैन इंक्लूड इट और अगर आप चाहें तो यू कैन एक्सक्लूड इट। योर थीसिस वोंट बी अफेक्टेड बाय दिस। एंड आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशंस आपने लाजमी लिखने हैं कि व्हाट विल इट कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। नाउ we have the literature review. So the literature review is the section where you survey existing knowledge on your topic. Think of it as the foundation of your thesis. You are building on the work of others, so you need to understand and explain what is already been done and where the gaps are. So its purpose shows the reader that you are well versed in the field. You are basically saying
Here is what other researchers have found about my topic, and here is how my work fits in. So you don't have to do something new all by yourself. You have to consult with the previous studies. Think of the literature review as building a case in a courtroom. You might have seen it in the movies that how the lawyer, which in this case is a researcher, presenting all existing evidence, which in this case are past studies, to the jury, which will be your readers, of course, to convince them of the context of your case. You would lay out what is known, point out holes in the evidence, and then smoothly lead into how you will provide new evidence to fill those holes. तो आप इसको एक जो अदालत में सुनवाई हो रही होती है, जब एक वकील एक जज से बात कर रहा होता है, तो आप इसको उस तरह से समझ सकते हैं। बेहतर आपको समझ आ जाएगी। तो की स्टडीज़ और उनकी फाइंडिंग्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अगेन हाउ द लिटरेचर रिव्यू सेक्शन ऑफ अ थीसिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू सेक्शन ऑफ अ प्रपोज़ल या रिसर्च साइनॉप्सिस इज़ अगेन यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्या है डिटेल्ड हो जाती है। यहाँ पर अब आपका 1-2 साइटेशंस से काम नहीं चलेगा, बट यू हैव टू बी डिटेल्ड। आप डिटेल्ड होंगे। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक लेकर आया, एग्जैक्ट उसी तरह से आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके हवाले से जो जनरल रिसर्च हुई है पहले उसे साइट करेंगे, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी डायरेक्शन जो है एग्जैक्ट आपका जो काम है उसकी तरफ करेंगे। ठीक है, तो आप लिटरेचर रिव्यू में फिर आप गैप फाइंड कर लेंगे। आप एंड पे कहेंगे कि सिंस दिस मच ऑफ द रिसर्च हैज़ बीन डन on the topic, on the problem, but still this part remains अनक्लियर। ओके, तो कोई भी जो आपका यानी गैप है वो अनक्लियर रह जाता है, तो इसीलिए आप एग्जिस्टिंग रिसर्च में चूंकि उसका कोई जवाब नहीं है, तो आपका अपना स्टडी डिज़ाइन जो है आप उससे डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है ये चीज़ वाज़े हो जाएगी, इंश्योर हो जाएगी कि जो आपका काम है वो वाकई पहले कहीं आंसर नहीं हुआ। अगेन ठीक है, जो आपने इसका की पॉइंट है, यू हैव टू कीप इट इन माइंड, एंड दैट इज़ टू साइट, टू रिव्यू, टू स्टडी द लेटेस्ट लिटरेचर। ठीक है, आपने लेटेस्ट लिटरेचर को क्या करना है, स्टडी करना है। कोशिश करें कि आप पिछले 5 साल से ज़्यादा पीछे के लिटरेचर को साइट ना करें। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे स्टडी ज़रूर करें, लेकिन उसे साइट करने से क्या करें, गुरेज करें। दैट विल हेल्प यू अलॉट। ये आपकी बहुत ज़्यादा क्या करेगा, मदद करेगा, और इससे आपकी जो स्टडी है वो जेन्युइन हो जाएगी, क्योंकि जो गैप है वो वाकई में एक रिसर्च गैप होगा। Then comes the methodology. So the methodology section basically answers this. The methodology section, it answers the question, what did you actually do to conduct this research? Here you will describe in detail the methods and procedures you use to collect data or evidence for your study. तो यहाँ पर आपने पूरी की पूरी क्या कर देनी है, डिटेल बता देनी है। आपने सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं कराना उन मेथड्स को, बल्कि आपने क्या बताना है, उन्हें इन डिटेल बताना है। ठीक है, कि आपने क्या क्या मेथड्स जो है वो यूज़ किए। A solid methodology is crucial because it allows others to understand and even replicate your study if needed. So participants of data sources, अगर आपने अपनी स्टडी में कोई पार्टिसिपेंट्स वगैरह यूज़ किए, तो आपने ये भी बताना है कि आपने लोगों को सिलेक्ट कैसे किया, और आपने किस एज के लोग सिलेक्ट किए और क्यों किए, फिर आपने उनसे सैम्पलिंग किस तरह की। अगर आपके जो जो मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, तो आपने बताना है कि आपने कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए, उनकी इंटीग्रिटी क्या है, उनकी जो है क्या सबूत है उनका जो है ऑथेंटिक होने का, तो आप उनमें से जो आपके सप्लायर्स हैं आप उनका लिखेंगे। जिन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए आप उनका लिखेंगे, एंड इंस्ट्रूमेंट्स, आप इंस्ट्रूमेंट्स की पूरी डिटेल्स लिखेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चनेयर्स हो सकते हैं, आपके लैब इक्विपमेंट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने हर एक चीज़ का पूरा डिटेल
लिखना है। जस्टिफिकेशंस आर मस्ट, जस्टिफिकेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। समटाइम्स इट इज़ हेल्पफुल टू ब्रीफली जस्टिफाई व्हाई यू चोज these methods. Think of the methodology like a recipe for your research. So if someone else had to follow your recipe, they should get as close as possible to the same result. That means clarity and detail are your friends here. However, also be concise, include enough detail but not extraneous information. ठीक है? आप मेथडोलॉजी क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि कोई और आपका जो रिसर्च है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहीं और अपना एक्सपेरिमेंट लगा सकता है। जिस तरह आपने पिछले रिसर्चर्स को साइट किया है, उनके यूज़ किए हुए मेथड को क्या किया है, फॉलो किया है, इसी तरह कहीं और कोई और जो है आपकी रिसर्च को फॉलो कर सकता है। तो आपने सैम्पलिंग स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कर दिया, आपने पार्टिसिपेंट्स वगैरह अगर है, क्वेश्चनियर्स कुछ भी है, आपने वो यहाँ पे बता दी कि आपने क्या-क्या किया है। जबकि साइनॉप्सिस में हम क्या बताते थे? हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव में बताते थे वी विल यूज़, और यहाँ पे होगा वी यूज्ड, वी परफॉर्म्ड, वी गैदर्ड। ठीक है जी? तो पास्ट टेंस में आप चले जाएँगे क्योंकि आप थीसिस लिख रहे हैं, व्हिच मीन्स यू आर डन विद द एक्सपेरिमेंटेशन। और अगेन जो भी टूल्स आपने यूज़ किए हैं उन सबको भी आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आपने क्यों कोई मेथड्स वगैरह सिलेक्ट किए हैं वो भी। और अगर आप कोई ऐसी स्टडीज़ कर रहे हैं जिसमें कि आपके पास कोई एनिमल्स वगैरह या इंसान वगैरह या कोई भी ऐसे जानदार यूज़ हुए हैं, तो आपने इथिकल कंसिडरेशंस भी लाजमी जो है ना साथ बतानी है कि आया जो आपने जो सैंपल साइज सिलेक्ट किया, जो जो आपने इतने सारे सेक्रीफाइस किए या इतना सैंपल्स उनसे कलेक्ट किया, ब्लड कलेक्ट किया, व्हाटएवर, तो क्या वो वर्थ इट भी था? क्या इसकी आपके पास कोई एथिकल अप्रूवल थी? तो वो भी आपने क्या करनी है, लाज़मी डिस्कस करनी है। सो आफ्टर मेथोडोलॉजी इट्स टाइम फॉर रिजल्ट्स। अब फिर आपको क्या मिलते हैं? रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुके हैं, तो अब आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं, बल्कि आप क्या करते हैं, बाकायदा रिजल्ट लिखते हैं। एग्जैक्टली आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आपको मिली है, बगैर किसी हेर फेर के। So in the results section you present what you found in your study. This section is all about the facts and data without interpretation. आपने यहाँ कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। इंटरप्रिटेशन कहाँ पे होती है? इंटरप्रिटेशन के लिए आपके पास डिस्कशन का सेक्शन होगा, जहाँ आप दिल खोल कर अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, और उसे मज़ीद इन डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी फाइंडिंग्स को एज़ इट इज़ लिखना है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास मौजूद हैं। सो इंटरप्रिटेशन कम्स लेटर इन द डिस्कशन, इट इज़ नॉट फॉर द रिजल्ट्स। Here you objectively report the outcomes of the procedures described in your methodology. आपने अपने रिजल्ट सेक्शन को जितना ऑब्जेक्टिव हो सके उतना ऑब्जेक्टिव रखना है। सो शुड नॉट इंक्लूड योर इंटरप्रिटेशन और व्हाट यू थिंक द रिजल्ट्स मीन। वो आपने किसके लिए रखने हैं? डिस्कशन सेक्शन के लिए। यहाँ पर अब आपने डेटा को फिर प्रेजेंट करना किस तरह है? डेटा को आपने टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, चार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, और इसके साथ साथ तो डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, टेक्स्ट भी लिखना है। ठीक है जी? कि ये आपकी क्या थी? फाइंडिंग थी। आपको क्या लगता है ठीक थी, गलत थी, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी। लेकिन जो आपका डेटा टेबल में है, वो किसी ग्राफ में है, किसी चार्ट में है, एग्ज़ैक्ट उसी डेटा को आपने वर्ड्स में भी लाज़मी क्या करना है? साथ लिखना है। एंड आफ्टर दैट आपने अ, जो है फाइंडिंग्स जो है अपनी, उसे बिल्कुल क्लियर अल्फाज में लिख देना है। आपने अगर कोई ख़ास ट्रेंड्स वगैरह आपके पास आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे क्या कर देने हैं? हाइलाइट कर देने हैं। बता देना है कि कोई चेंज सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ आ रहा है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आ रहा है, नॉन सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ डिक्रीज़ है, सेम इफ़ेक्ट है, ऑपोज़िट इफ़ेक्ट है, पॉज़िटिव इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वगैरह वगैरह। जो चीज़ें भी आपके पास आई हैं, एज़ इट इज़ आपने उन्हें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो आफ्टर रिजल्ट्स वी हैव discussion. So the discussion section is where you interpret your results and explain their significance.
This is your chance to analyze, reason, and give meaning to the findings you presented in the results section. Think of the discussion uh, as a conversation with your data. So, what are my results telling me and how do they answer my research question? यही चीज़ जो है आपने बातें करनी है अपनी डिस्कशन के अंदर अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स के साथ कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं. टू पुट इट सिंपली, द डिस्कशन इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स between your results, your initial questions, and the existing body of knowledge. It is where you tell the story of your research's significance. What did we learn and why should we care? तो ये पॉइंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है ज़रूरी है व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्कशन. तो अगेन आपने क्या करना है, रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करनी है जो रिजल्ट सेक्शन में नहीं करनी थी, ठीक है, वो अब आपने यहाँ पे करनी है. और अगेन आपने यहाँ पे भी क्या करना होता है, सबसे पहले जब आप डिस्कशन भी लिखते हैं तो आपने एक बार फिर हल्का सा समराइज कर देना होता है पहले अपनी फाइंडिंग को कि आपको क्या फाइंडिंग मिली. जब आप पहले अपनी फाइंडिंग बता दें एक सेंटेंस में, तो उसके बाद आपने 2, 3, 4 जितने भी आपके पास ऑथेंटिक जो है वो साइटेशंस हो, वर्क्स हो, आपने अब उनको डिस्कस कर देना है कि जी फलाने 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 को भी ये फाइंडिंग्स मिली थी जब उन्होंने क्या की थी, रिसर्च की थी. और उसके बाद आपने इसकी क्या बता देनी है, इंटरप्रिटेशन बता देनी है कि क्यों ऐसा हो सकता है. हर एक पैरामीटर के साथ आपने अपनी इंटरप्रिटेशन लाजमी बतानी है. कंपेयर फाइंडिंग्स विद एग्जिस्टिंग लिटरेचर, और फिर आपने जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस किया. लिमिटेशंस भी आपने डिस्कस करनी है और अगर कोई पोटेंशियल बायस हो तो उसे भी डिस्कस करना है. लिमिटेशंस मोस्टली लोग डिस्कस नहीं करते. ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे तो उसके बाद ही वो इन फ्यूचर जो है जाकर आपका जो रिकमेंडेशंस होती हैं उसके साथ लिंक होंगी. अगर आप लिमिटेशंस ही नहीं रखते तो आप रिकमेंडेशंस नहीं दे पाएंगे और फ्यूचर के लिए जो रिसर्च है उसके लिए आप कोई तजवीज़ नहीं दे पाएंगे कि इन फ्यूचर किस चीज़ पे काम करना चाहिए. So, with that, now we have our last section, which is conclusion. So, the conclusion is where you wrap up the entire thesis and leave the reader with the key takeaways. It is your final word on the subject. So, if think of it that if the introduction was the appetizer and the body of the thesis was the main course, so the conclusion is the dessert. So, it is the final taste that will linger. You want it to be satisfying and to reinforce the enjoyment, or in this case the understanding of the meal. तो जो आपने खाना पेश किया है उन्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग उन्हें हो, उनकी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो उन्हें पता चल जाए. तो कंक्लूजन जो है वो आपका इस तरह से काम करता है. ये आपका फाइनल वर्डिक्ट है, आपका फाइनल वर्ड है अपनी रिसर्च के लिहाज से. वंस अगेन आपने यहाँ पे फिर से अपनी जो फाइंडिंग्स थी उनकी समरी बतानी है लेकिन बहुत ही छोटी सी. और उसके बाद आपने रिकमेंडेशंस देनी है कि जी आपका क्या स्टांस है इस, अगर आप कोई टॉक्सिसिटी चेक कर रहे हैं तो आपने बताना है क्या ये केमिकल टॉक्सिक है या नहीं है. अगर आप कोई पॉजिटिव स्टडी कर रहे हैं, आप कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर क्या कर देनी है, फाइनली कंक्लूड कर देनी है. और रिफ्लेक्ट ऑन द ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस ऑफ योर स्टडी. आपकी स्टडी ने क्या कंट्रीब्यूशंस दी वो भी ज़रूरी है. अगेन जब आप लिमिटेशंस बताते हैं तो फिर आपने रिकमेंडेशंस और फ्यूचर रिसर्च जो है वो भी बतानी होती है, तजवीज़ करनी होती है कि फ्यूचर में जो है क्या करना चाहिए, किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए. नाउ a few important things are listed here, which is what to include and what to avoid while writing the thesis. तो आपने क्या include करना है, clear objectives, clear hypothesis, very important. मेथोडोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपने क्या करनी है, बतानी है. एक एक स्टेप आपने बताना है कि पहले हमने स्पेचुला धोया, फिर उससे हमने जो है ना देन वी
collected the blood sample by using this type of needle, इस कंपनी की थी, इतने एमएल वाली थी, ठीक है, और क्यों ये वाली यूज़ की, दूसरी वाली क्यों नहीं यूज़ की, तो हर एक चीज़ को आपने क्या करना है, डिटेल में बताना है। Relevant citations again are very much important, authentic हो, up to date हो, और विजुअल एड्स भी आपने ऐड करने हैं। विजुअल एड्स में क्या था हमारे पास, हमारे टेबल्स, हमारे ग्राफ्स, हमारे चार्ट्स वगैरह, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ वहाँ लाजमी ऐड करने हैं। अवॉइड क्या करना है जी, बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी भी नहीं लानी और बहुत ज़्यादा जार्गन भी नहीं लाना, बहुत ही गैर ज़रूरी डिटेल्स के जो टॉपिक से कनेक्शन ही नहीं है, आप वो चीज़ें भी इसमें लिखने लग जाए। उसके बाद इर्रिलेवेंट डेटा आपने हरगिज़ 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 ऐड नहीं करना, और प्लेजरिज्म से जितना हो सके बच के रहना है। तो जब आप किसी का काम लिखते हैं, अपने अल्फाज में लिखें, इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, और जब वो अपने अल्फाज में भी लिख लें, तो उसके बाद उसको आप क्या करें, साइट करें। जब अपने अल्फाज में लिख लिया तो फिर आपने क्या करना है, साइट करना है कि जी ये फलाने बंदे की बात है, उसने ये रिसर्च की है। क्रेडिट आपने लाजमी देना है, जिससे आपकी रिसर्च क्या हो जाएगी, ऑथेंटिक हो जाएगी और आप प्लेजरिज्म से बच जाएंगे। ना हियर इज़ अ डिटेल्ड सैम्पल एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ऐड किया है, तो मैंने सिर्फ एक एक लाइन आपके लिए ऐड की हुई है, बट ऑफ कोर्स ये पार्ट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, डिटेल में होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल आपका एक ओपनिंग सेंटेंस है कि दिस स्टडी इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स इन पाकिस्तान। द रिसर्च एम्स टू असेस चेंजेस इन स्पीशी डाइवर्सिटी एंड वाटर क्वालिटी metrics over the past decade। तो पहले अपने आपने बता दिया कि ये आपकी स्टडी क्या करना चाह रही है, और फिर आप जो है अपना एम बता रहे हैं कि हासिल क्या करना चाह रही है। फिर लिटरेचर रिव्यू, अब ये एक ही आर्टिकल को जो है यहाँ पे साइट किया गया है, आपने इस तरह के 20-30 तो कम से कम आपने आर्टिकल्स मिनिमम साइट करने हैं, और वो भी ऑथेंटिक, अप टू डेटेड। फॉर एग्जांपल प्रीवियस स्टडीज सच एज अहमद एटाल, यानी अब ये उस बंदे ने स्टडी की थी, लिटरेचर रिव्यू में बता रहे हैं। हाईलाइट सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसने बताया था कि जी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है कहाँ पे, अर्बन एरियाज में। हाउएवर लिमिटेड रिसर्च हैज़ फोकस्ड ऑन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स पे काम नहीं किया गया, आप घूम फिर के बता रहे हैं, ठीक है। आपको ये एक लतीफ़ा जो है वो याद होगा कि जो एक बच्चा था वो फेल हुआ, तो जब घर आया अब्बू ने पूछा कि जी बेटा क्या रिज़ल्ट आया है, तो उसने कहा कि अब्बू वो फलाने डॉक्टर साहब का जो बेटा है वो फेल हो गया है ना। फिर कहते बाप ने फिर पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या रिजल्ट है, तो कहते अब्बू जी फलाने वकील साहब का बेटा भी इतने पर्चों में फेल है। अब्बा ने फिर कहा कि कहते, अब्बा तेरा पुत्र केड़ा आइंस्टाइन दा जेड़ा है पुत्र है, ठीक है, कि वो पास हो गया होगा तो मैं भी फेल हूँ। तो बहरहाल बात का मकसद है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रीवियस बातें बतानी है, और एट द एंड घुमा फिरा के आपने अपने काम की तरफ ले आना है कि देखिए इस पे कोई काम नहीं हुआ, तो मैं इसीलिए इस पे काम करना चाह रहा हूँ, और ये जो एरिया है ये इंटरेस्ट भी है, ये जो है ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से लोग इस एरिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन इस एक स्पेसिफिक पैरामीटर पे काम नहीं किया, तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। एंड देन अगेन मेथडोलॉजी में आपने डिटेल बताना है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल है। रिजल्ट्स में आपने अब एक फिगर है तो उसमें भी डेटा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे भी जो मैं आपको कह रहा था कि आपने टेक्स्ट में भी डिस्क्राइब लाजमी करना है, तो वो इसी तरह है कि फिगर 1 illustrate a 30% डिक्लाइन इन स्पीशी रिचनेस इन अर्बन एरियाज, ठीक है, compared to rural sites. Water quality analysis showed elevated levels, nitrates, phosphates in urban areas. अब आप यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी implication नहीं है, कोई भी आई थिंक फलाना थिंग डिमकाना थिंग कुछ भी नहीं है। जो फाइंडिंग आई है उसे यहाँ पे एज इट इज़ क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है।
Then the discussion section. So the findings suggest that urbanization significantly impact freshwater biodiversity. Urban sites exhibit higher pollution levels correlating with reduced diversity of species. तो डिस्कशन में अब इम्प्लीकेशन बता रहा है कि ये जो 30% डिक्लाइन मिला है तो ये किन किन वजूहात से है। ठीक है, आपने फिर अपना दिल खोल के इसमें क्या करें, अपना आइडियाज़ भी पेश करें और जो पहले रिसर्च हुई है उनको भी लाजमी क्या करें, यहाँ पे अगेन आपको साइट करना पड़ता है। और फिर कंक्लूजन है, फ्यूचर रिसर्च है। फ्यूचर रिसर्च के लिए क्या है, अब यहाँ उसने कहा कि ये हमने थोड़ी देर अरसे के लिए कलेक्शन की है, तो फ्यूचर रिसर्च लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को और इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज को क्या करें, एक्सप्लोर करें। तो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट राइटिंग अ थीसिस, और साथ ही एक हमने बहुत ही टू द पॉइंट सी एग्जांपल भी डिस्कस कर ली। नाउ कम्स टूवर्ड डेटा गैदरिंग टेक्निक्स कि जी किस तरह की डेटा गैदरिंग टेक्निक्स होती हैं। तो इसमें हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं जिसमें हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यूज़ कैन बी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में हमने बस एक ख़ास स्क्रिप्ट बनाई होती है, क्वेश्चंस बनाए होते हैं, वही पूछे जाने होते हैं। उसके आपको जो है आगे से बंदा अपने हिसाब से क्या करता है, जवाब देता है, लेकिन सवाल आपके बने होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जो है उसमें क्या होते हैं कि इसके अंदर आपने क्वेश्चंस बनाए तो होते हैं, लेकिन अगर जवाब जो आपको आपका जिसका आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, वो जो आपको जवाब दे, तो उसमें से भी सवाल निकल सकते हैं, तो उस पे कोई बंदिश नहीं होती। ठीक है? जो जिससे आपको जो पार्टिसिपेंट है उसका पर्सपेक्टिव भी सामने आ जाता है। और इसके अलावा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ भी होते हैं, जो कि कंप्लीटली नेचुरली आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप उसे फ़ील नहीं होने दे रहे होते कि ये आप क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसमें कोई सवाल जवाब वगैरह नहीं होते। So after interviews, a second type of qualitative method is आप फोकस ग्रुप्स बना देते हैं। आप उसमें से क्या कर देते हैं, डिस्कशंस करवाते हैं लोगों से, और फिर आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लिपस्टिक है उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने जो जिन जिन लोगों ने भी वो लिपस्टिक यूज़ की होगी, आप उनके ग्रुप्स बना देंगे, वो आपस में डिस्कशन करेंगे। कोई कहेगा कि मुझे जी लिपस्टिक का जो उसकी शाइन थी वो पसंद आई, कोई कहेगा उसकी लॉन्गेविटी पसंद आई, कोई कहेगा जो उसके जो दांतों पे नहीं लग रही थी, कपड़ों पे नहीं लग रही थी वो पसंद आया, कोई कहेगा पानी से नहीं उतर। तो यू विल हैव डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, और वो आपको क्या करेंगे फिर कंक्लूजन रिजल्ट्स वगैरह की तरफ जाने में मदद करेंगे। फिर अगला आपके पास आ जाता है क्वालिटेटिव में कंटेंट एनालिसिस, जहां आप ऑलरेडी कोई टेक्स्ट वगैरह या कुछ भी जो मौजूद है डेटा, उसको खुद क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे फिर अपनी फाइंडिंग्स तक पहुंचते हैं। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ डेटा गैदरिंग टेक्निक्स आर क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपके पास अब नंबर्स आ जाते हैं, फिगर्स आ जाते हैं, फैक्ट्स आ जाते हैं। इसमें आप सर्वेस कंडक्ट करते हैं। सर्वेज आप क्वेश्चनियर्स बनाते हैं। क्वेश्चनियर्स क्लोज्ड हो सकते हैं, ओपन एंडेड हो सकते हैं, और आप इससे क्या एक ख़ास स्टैंडर्ड का डेटा कलेक्ट करते हैं। किस तरह से क्वेश्चनियर्स क्लोज और ओपन एंडेड के आपने कहीं पे सिर्फ यस नो के सवाल दे देने हैं, तो क्लोज एंडेड जहाँ पे अगले बंदे के पास लिमिटेड ऑप्शंस हों, वो अपना व्यू ना बता सके, और ओपन एंडेड में क्या है कि आपने एक डाइवर्स क्वेश्चन किया है, उस पे आपको वो बंदा जो है वो क्या करता है, अपना नज़रिया पेश करता है। तो आप सर्वे ही कर रहे हैं, लेकिन अगले को भी बोलने की, लिखने की, बताने की इजाज़त है। सर्वेज़ आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। आप फिज़िकली कर सकते हैं ऑन पेपर, आप इंटरनेट पे कर सकते हैं, आप गूगल फॉर्म्स वग़ैरह और ये चीज़ें यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये जो सर्वेज़ हैं दे कैन बी परफॉर्म्ड इन सो मेनी डिफरेंट वेज़। आफ्टर दैट कम दी एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स जो हम कंडक्ट करते हैं वो भी क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर आते हैं, और अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे पास, और फिर हमारे पास जो है ना जो अनस्ट्रक्चर्ड वगैरह एक्सपेरिमेंट्स है वो होते हैं, और फिर कुछ कॉजी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं
तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे। इससे हट के हमने ऑब्जर्वेशंस करनी है, जिसमें हम नेचुरल एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स के अंदर, नेचर के अंदर, जिनकी एक्सटर्नल वायबिलिटी ज़्यादा होती है, हम उनमें अपनी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो लेते हैं। जिस तरह आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ में कैमरास वगैरह लगे होते हैं, ट्रैप करते हैं। जिस तरह आप देखते हैं पॉलिनेशन को जो है नेचर में हनी बीज की मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, जिस तरह बर्ड्स की माइग्रेशन को ट्रैक किया जाता है। तो दीज आर क्वांटिटेटिव मेथड्स बट दे डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन। इसमें हम खुद किसी को माइग्रेशन नहीं करा रहे, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है, बल्कि नेचुरली अकरिंग कोई फिनोमेना है और हम उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ उससे वैल्यूज़ वगैरह ले रहे हैं। और डिफरेंट डेटा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है ये तमाम स्टेप्स को अचीव करने के लिए। स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स जो हैं वो हमारे पास बहुत से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिस तरह के यहाँ पे टी टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। तो मिसाल के तौर पे आप यूँ समझे कि आप जो है ना, कोई दो ग्रुप्स हैं उनके बीच के मीन को डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह अभी हमने बात की कि अगर आप बायोडाइवर्सिटी लॉस इन अर्बन एरियाज़ वर्सेस रूरल एरियाज़ करेंगे, तो इन दो का जो मीन आएगा आप उसको कंपेयर करेंगे और इस पे क्या लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे। इसी तरह अगर आपके ग्रुप्स दो से ज़्यादा है तो आप अनोवा लगाएंगे। अनोवा में भी फिर हमारे पास वन वे अनोवा आ जाता है, टू वे अनोवा आ जाता है, जिसको हम इन डिटेल अलग फिर डिस्कस करेंगे इन सारे टेस्ट्स को कि किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। बट राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट different types of statistical tests that are out there and that are being used on a frequent basis. रिग्रेशन एनालिसिस में अगर आप कोई रिलेशनशिप वगैरह वेरिएबल्स का बताते हैं, तो आप ये है जिसके लिए स्कैटर्ड ग्राफ वगैरह यूज़ होते हैं। कोरिलेशन या रिलेशन रिग्रेशन जो है इसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट आपकी कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं आपकी, अ, उनके बीच जो है एसोसिएशंस बताता है। तो ये सारे जो हैं टेस्ट्स, ये इस तरीके से आपको क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। तो अगर आपका, जिस तरह हमने अभी कैटेगोरिकल की बात की, तो आपका अगर डेटा, या हम जो है एक एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ये दो ग्रुप्स की टी टेस्ट के हवाले से। फॉर एग्जांपल अगर दो क्लासेस हैं आपके पास, एक है क्लास ए और दूसरी है क्लास बी, और आप जो है इनका जो हनी की प्रोडक्शन है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। ग्रुप्स, क्लासेस मींस ग्रुप्स, ठीक है जी। कि जो एक आपके पास क्लास है हनी बीज की जिनको ट्रीट नहीं किया गया, और दूसरा जिनको कि क्या किया गया है, ट्रीट किया गया है। तो जिन्हें ट्रीट नहीं किया जा रहा वो आपका कंट्रोल हो जाएगा, और जिन्हें उन्हें ट्रीटेड ग्रुप कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है। तो इसके लिए आप टी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो टी टेस्ट कहेगा क्या भाई, वो आपको बताएगा द डिफरेंस इन द मीन्स, जो कि उनके एवरेजेस हैं, और वो ट्रीटमेंट की वजह से है या रैंडम वेरिएशन है। तो यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। अगर वो सिग्निफिकेंट हुआ, सिग्निफिकेंट में जब लेस देन आपके पास 0.05 आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट होता है, फिर इससे थोड़ा हाईली सिग्निफिकेंट होता है, और फिर वेरी हाई सिग्निफिकेंट जिसमें 0.001 आपके पास या इससे कम आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाए। बहरहाल डिटेल डिस्कशन जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स हैं और किस तरीके से अप्लाई होते हैं विद सैम्पल डेटा, तो वो हम जो है अपने अलग एक लेक्चर में डिटेल में कर लेंगे। एप्लीकेशंस भी यहाँ पर गिवन है, जो कि हमने ऑलरेडी क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। फिर अगेन आप इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट को यूज़ करने के लिए पाइथन, आर और एसपीएसएस और इसके अलावा एक्सेल, और इसके अलावा ग्राफपैड, प्रिज्म वगैरह, और इस तरह के बहुत से क्या हैं टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भी और इनकी विजुअलाइजेशंस के लिए भी, इनके डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह बनवा कर। तो इट फाइनली, not finally, but here we have the tips for cracking thesis writing. टिप्स में आपके टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, आपने राइटिंग एज सून एज पॉसिबल करनी है। किसी भी पार्ट से लिखना शुरू करें, लेकिन लिखना शुरू करें। फिर हमारे पास आ जाती है टाइमलाइन विद डेडलाइंस। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमलाइन आपके पास होगी तो आप रियल
जो वर्ल्ड के अंदर जो है आप बता सकेंगे कि आप बिहाइंड स्केड्यूल जा रहे हैं या ठीक जा रहे हैं। तो डेडलाइन आपको ज़रूरी है कि हर हर चीज़ पे आपका कितना कितना टाइम लगना है वो एक प्रॉपर टाइमलाइन के अंदर मौजूद हो। फीडबैक वक्तन फ़वक्तन लेना इसलिए बेहतर है कि आप बहुत ऐसा नहीं होता कि आपने पूरा थीसिस लिख लिया, आपको जो सुपरवाइज़र ने बताया, मेंटर ने आपके कि जी ये तो गलत है, फिर आप सारा लिखेंगे। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम हर चैप्टर के साथ फीडबैक लेते रहेंगे तो अगर आपको कोई रिविजन्स करनी भी पड़ेंगी तो दे वॉन्ट बी दैट मच हेक्टिक, वो इतनी हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगी, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होंगे। और शेयर ड्राफ्ट विद पीयर्स एंड एडवाइजर्स, ये चीज़ भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। रिविजन्स आर नेसेसरी, प्रूफ रीड करें, ग्रामर वगैरह की क्लैरिटी को देखें, फॉर्मेट टाइम टू टाइम चेक करते रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें, आपका कोहेरेंस हो, आपकी कनेक्टिविटी हो आइडियाज़ वगैरह के अंदर। और रेफरेंसेस को जो है आप डायरेक्ट यानी कि ना करें मैनुअली, बल्कि आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक इन नोट, मेंडलेस, जोटेरा वगैरह इनको क्या करें, इस्तेमाल करें। अगर आप इन पॉइंट्स को नज़र में रखते हैं तो यू वोंट हैव एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी इन राइटिंग योर थीसिस। हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल है, बट मैं यहाँ पर अभी इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इट इज़ फॉर यू टू रीड, ये आपके लिए कि आपको आप इसको रीड करें, कैसे मेथडोलॉजी है, कैसे रिजल्ट्स बन रहे हैं, कैसे उन्हें लिखा जा रहा है। ठीक है, देखें आप, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट क्या है, जो फाइंडिंग है बस उसी को लिखा गया, मेथड जो है बस उसी को लिखा गया। बट अगेन थीसिस में दीज आर इन वेरी डिटेल, ग्रेट डिटेल के अंदर होते हैं। देन डिस्कशन एंड देन कंक्लूजन। फिर आपके पास अगेन रिसर्च क्वेश्चन की बात आ गई है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में, कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, रिलेवेंट हो। और इसके अलावा जो है यहाँ पे अब ये क्यों एक्ट कर रहा है, जो पिछले क्वेश्चंस की बात बता रहा है कि ये पे सिंगल वेरिएबल है पेस्टिसाइड हमारे पास, और जो आउटकम्स हैं वो भी मेजरेबल है, मोर्टेलिटी कैसे, फॉरेजिंग कैसे कर रहे हैं वगैरह। और क्यों अहम है, लोग इसको क्यों खुशी खुशी अप्रूव करेंगे, क्योंकि इकोलॉजिकल टाइज है, एग्रीकल्चर रिलेवेंस भी है इसकी, तो आजकल यही इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है आपका जो क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आप एक और किस तरह से आप जो है ऑब्जेक्टिव अपने बना रहे हैं कॉलोनी की हेल्थ को देखने के लिए, ये क्यों काम करेगा। तो जीन एक्सप्रेशन वगैरह एक आप अचीवेबल एक टास्क है, उसे इजीली अचीव किया जा सकता है। देन दिस एक्टिविटी इज़ फॉर यू टू कैरी आउट। आप कोशिश करें कि एक थीसिस की आउटलाइन बनाएं, और माइक्रोप्लास्टिक्स ऑन मेरिन एल्गी ग्रोथ, तो टॉपिक आपका ये हो जाएगा। और जिस तरह हमने हेडिंग्स डिस्कस की, आपने एग्जैक्ट उसी तरह की हेडिंग्स डिस्कस यूज़ करनी है। और रिसर्च क्वेश्चंस एक आध बनाएं, और चंद एक ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, एंड सी वेयर यू एंड अप विद दिस सैम्पल एक्सरसाइज। रेफरेंसेस ज़रूर है, साइटेशंस भी, जो कि इन टेक्स्ट, इन बिटवीन टेक्स्ट दी जाती हैं, और एट द एंड जो डिटेल्ड रेफरेंसेस होती हैं वो भी। दिस इज़ अ सैम्पल रेफरेंस, इसमें आथर है, कॉमा, ईयर, बट दिस इज़ not the only reference method out there. General to general, thesis, department to department, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जो रेफरेंसेस के स्टाइल हैं वो वेरी करते हैं। तो अगेन वहाँ पे देयर इज़ अ नीड ऑफ कंसल्टेशन विद द सुपरवाइज़र एंड मेंटर। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। खुश रहें, और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।